thankful to God for this wonderful opportunity to share from His Word. And on behalf of the Dauntless Pulpit family, I extend my greetings to you all. And I hope and pray that we are being blessed by the sharing. सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु के वचनों में से बांट सके, और विशेष तौर से काउंटलेस पुलपिट के पूरे परिवार की ओर से हम आप सभी को अभिवादन करते हैं और परमेश्वर की स्तुति हो कि हम यहाँ पर प्रभु के वचन में से सुनने के लिए एकत्र होने पाए। And before we get into the word today, let us look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you for giving us this beautiful opportunity to hear from your word. Lord, we pray as we enter into a season of rejoicing, help us, Lord, to understand the true meaning for you coming into the world, Lord, and help us to look forward to your coming again, Lord. We pray for the word which comes to us, Lord. Help us to be receptive towards your word and open up our hearts that we are able to receive your word. Thank you, Lord, once again for this time. We commit the rest of the time into your hands. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Amen. John MacArthur, a very famous pastor and teacher, once gave a very relevant example of a very famous childhood game called hide and seek. जॉन मैकार्थर नामक एक बहुत ही प्रचलित पासवान और बाइबल के एक शिक्षक है जिन्होंने एक समय बहुत ही प्रचलित ऐसा एक उदाहरण दिया था जो हमारे बचपन का एक खेल है लुका छुपी, उस पर आधारित था। And it was one of my favorites too when I was a child. और And मैं when जब we heard the person, yeah, go on. और मैं जब छोटी थी तब मुझे भी ये खेल बहुत ही पसंद था। When we heard the person count, we used to go and hide, waiting for him or her to come looking for us. जब हम किसी व्यक्ति को वो गिनती गिनते हुए सुनते थे तब हम जाके छुप जाते थे और फिर राह देखते थे कि वो व्यक्ति हमें ढूंढते हुए आए। It was exciting as it built up a lot of excitement while we hid and waited. ये बहुत ही रोचक रहता था, जैसे कि हम छुपकर राह देख रहे थे एक प्रकार के उत्साह के साथ कि वो व्यक्ति हम जो छुपे हुए हमें ढूंढने के लिए आएगा। Sometimes we were ready and watchful, while the other times we were just running around trying to find places to hide. But the person would come anyways, while we were ready or not. काफी बार हम तैयार होते थे, छुप के बैठते थे, और काफी बार हम बस इधर उधर भाग के दौड़ के छुपने की जगह ढूंढते रहते थे। परंतु जो निश्चित बात थी वो ये थी कि हम तैयार हो या ना हो, वो ढूंढने वाला व्यक्ति आने ही वाला है। The passage for today's sharing is taken from the Gospel according to St. Matthew's, chapter 24, verse 42 to 44. आज के हमारे इस मनन के लिए जो शास्त्र पाठ चुना गया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और 42 से 44 पद तक हम पढ़ेंगे। And I'll read that to you. Therefore, stay awake, for you do not know on what day our Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 42 से 44 पद में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आनेगा, तो वो जागता रहेगा और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। In today's meditation, we are going to look at what exactly it means to stay awake.
And how are we called to await in uncertainty of the time without knowing the hour of our Lord's arrival? और आज के इस मनन के लिए हम जो विशेष तौर पे हम जो सीखना चाहते हैं वो ये है कि हम सजाग या फिर जागते हुए कैसे रहे, क्योंकि हमें तो एक ऐसी घड़ी में एक ऐसे अनिश्चित समय में हमें जागते रहने और राह देखने का बताया गया है, जिस घड़ी के बारे में, जिस समय के बारे में, प्रभु के आने के बारे में, आगमन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। We see throughout the passages, and as Matthew writes, और हम अलग अलग पूरे शास्त्र पाठों में पढ़ते हैं और मत्थी इस प्रकार से लिखते हैं, Jesus' kingdom building activities, which were not just for the era he came, but was more precisely for the people to anticipate the second coming. और मसीह यीशु के जो भी प्रभु के राज्य को बांधने के जो भी कार्य थे, वो केवल उसी समय के लिए नहीं थे जब वो आए थे, यीशु मसीह आए थे, परंतु खास तौर पे वो उन लोगों के लिए थे जो लोग उनके दूसरे आगमन की वाट जो रहे हैं। In the same chapter 24, in the previous verses, we see Jesus foretells various signs towards the coming again. और इसके पहले के 24वें अध्याय में ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह काफी सारे ऐसे चिन्ह और काफी सारी ऐसी बातें वो बताते हैं कि वो जब वापस आने वाले हैं वो किस प्रकार से आएंगे। We see instances like the destruction of the temple, signs of the close of age, and also where the disciples in verse 3 we see asking Jesus to tell them when will these things happen and what will be the sign of his coming. और हम उसमें आगे ही पढ़ते हैं जैसे कि बातें लिखी गई जिसमें मंदिर का नाश होगा, उसके साथ साथ युग के समाप्ति के चिन्ह आएंगे, और तीसरे पद के अंदर जिस प्रकार चेले यीशु मसीह के पूछते हैं कि ये सब चीजें कब होगी, क्या चिन्ह होंगे तुम्हारे वापस आने के। But Jesus here we see does not answer their questions straight. Rather, we see the parallel shift from the hour of coming to how are we supposed to wait for the second coming. परंतु यहाँ पर यीशु मसीह सीधी रीति से चेलों के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, परंतु उनका जो प्रश्न है, उनका प्रश्न था कि कौन सी घड़ी वापस आने वाले हैं, क्या चिन्ह होंगे, परंतु उसके जवाब में यीशु मसीह इस प्रकार से उत्तर देते हैं कि हमें किस प्रकार उस दूसरे आगमन की वाट जोड़नी है। And we see that Jesus warns of false prophecy and rumors and false alarms and many such things, but we are not to panic because the end has not yet come. और यीशु मसीह हम देखते हैं कि उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि गलत भविष्यवक्ताएं उठेंगे, गलत अफवाहें फैलेगी, गलत घंटियां बजेगी, और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के ऐसे चिन्ह होंगे, परंतु हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि अंत का समय अभी तक आया नहीं है। Many will fall for the false teachings and go astray. और बहुत सारे लोग गलत शिक्षण के पीछे हो लेंगे। There will be increased lawlessness. और एक प्रकार का नियम के प्रति एक अराजकता लोगों के हृदय में आएगी। And many will even grow cold on love. और काफी सारे लोग प्यार के सही मतलब को भी नहीं समझेंगे। But the one who endures to the end will be saved. परंतु वो व्यक्ति जो अंत तक टिके रहता है वो बचाया जाएगा। And furthermore, Jesus says that the gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all the nations, and only then the end will come. और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में एक साक्षी के तौर में सारे देशों में बांटा जाएगा, और तब ही अंत आएगा। In verses 13, Jesus again gives a brief description, and we see that how the end will look like,
And he warns us in verse 29 and makes his point very clear. See, I have told you beforehand. और स्पष्ट रीति से 13वें पद के अंदर यीशु मसीह फिर से एक बार संक्षिप्त में अपने पुनरागमन की पूरी बात को बताते हैं और वो किस प्रकार आएंगे उसका भी वो वर्णन करते हैं। और 29वें पद के अंदर वो कहते हैं अपनी बात को स्पष्टता के दौरान से रखते हुए कि देखो मैंने तुम्हें पहले से ही बताया हुआ है। Here, in these sayings of Christ, we see some key significant words denoting both certainty as well as unbriefed hour of the advent of Christ, the parousia in Greek as we call it. और यीशु मसीह की इन बातों में स्पष्ट रीति से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखते हैं जो एक प्रकार की निश्चितता को बताती है और एक प्रकार की ऐसी घड़ी को बताती है यीशु मसीह के आने के बारे में, पारूसिया जिसे यूनानी भाषा में कहा जाता है, दूसरा आगमन। Jesus made his statement with the word therefore, which if we see in the English grammar is a way of showing how a clause or a sentence is related to something which has already been said before and in context. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने व्याख्यान की शुरुआत इसीलिए शब्द से करते हैं और ये जो इसीलिए है ये व्याकरण की भाषा से यदि देखें तो ये एक प्रकार का ऐसा वाक्य शुरू करता है जिसका संबंध उसके पहले जो बात की गई है उसके साथ जोड़ा जाता है। Which tells us that this was not the first time Jesus was indicating about his coming again. और ये हमें ये बताता है कि ये पहली बार नहीं थी जब यीशु मसीह अपने पुनरागमन के बारे में बता रहे थे। Jesus, from the very beginning of time, he was very prompt in making his purpose known to the people, and his kingdom building acts were a clear indication of his sovereign rule. और यीशु मसीह ने बहुत ही शुरुआत से ही अब उनके जो हेतु थे वो लोगों के सामने रखे थे और उनके जो प्रभु के राज्य को बांधने का जो कार्य था वो बहुत ही स्पष्ट रीति से उनके सर्वोपरि राज को दर्शा रहा था। It wasn't like he giving a sudden shock in verse 42, asking to stay awake, or the uncertainty of not knowing on what date the Lord is coming. और ये ऐसा बहुत ही चौंका देने वाली बात नहीं थी जब 42वें पद में यीशु मसीह एकदम से कहते हैं कि जागते रहो, या फिर ऐसी कोई अनिश्चित बात नहीं थी कि परमेश्वर के राज्य का दिन आने वाला है। But rather he used therefore at the very beginning, which connected all of his signs and the sayings from before. और उसके विपरीत हम ये पाते हैं कि उन्होंने इस पूरे व्याख्यान की शुरुआत ये इसीलिए शब्द से की और ये इसीलिए शब्द से की इसकी वजह से उनके जो चिन्ह थे और उनकी जो बातें थी इन दोनों को वहां पे हम जोड़ा हुआ पाते हैं। What is the significant thing that we see in this verse 42 is that a complete certainty for the uncertain time. और 42वें पद की सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं और हम समझते हैं वो ये है कि इन अनिश्चित समयों की पूर्ण रीति से एक निश्चितता है हमारे सामने। Parousia, that is the coming of Christ, is a certain event, but the hour remains unknown. ये जो पारूसिया है मतलब यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो बहुत ही निश्चित घटना है, परंतु वो कौन सी घड़ी आएंगे वो अभी अनजान है। But even in this uncertainty, Jesus is asking us to stay awake. And when we read in the NIV translation, it says, keep watch. और परंतु इस अनिश्चित घड़ी के बारे में भी यीशु मसीह हमें कह रहे हैं उसके बारे में कि हमें जागते रहना है, और दूसरे भाषांतर या फिर अनुवादों को देखें तो एक प्रकार से हमें पहरा देना है। What does staying awake and keeping watch mean? जागते रहना और पहरा देना उसका मतलब क्या है? Does it mean that we remain awake always and not catch up with our sleep or maybe get high on caffeine?
क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा बस जागते रहे, हमारी आंखों को खुली रखे और सोए ना बिल्कुल भी, या फिर बहुत ही भारी मात्रा में हम कैफीन को ग्रहण करें? Jesus reminds us to be mindful of his coming and being on guard always. यीशु मसीह हमें फिर से एक बार याद दिला रहे हैं कि उनके पुनरागमन के बारे में हमें सजाग रहना है और हमारे मार्गों का हमें ध्यान रखना है। If we aren't alert, we aren't aware, and we don't keep a watch, we cannot do the things God has called us for before his coming again. यदि हम अगर सजाग नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सावचेत नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि हम जो करते हैं उसके बारे में हम एक प्रकार से अपने कार्यों पर पहरा नहीं देते हैं, और उसके साथ साथ जो परमेश्वर ने हमें बातें करने के लिए कही है उनके वापस आने से पहले, वो हम नहीं कर रहे हैं। It translates a present imperative indicating a call for continual expectancy. ये जो भाषांतर है वो एक रीति से ये जो वर्तमान काल का एक प्रकार की आज्ञा है, जो हमें एक ऐसी बुलाहट देता है कि एक प्रकार की निश्चितता से हमें अपेक्षा रखनी है। Staying awake can also be referred to a constant awakening of living out our salvation and being saved and being spiritually prepared to meet Christ as Lord and Judge. और जागते रहने का मतलब ये भी है कि हम एक रीति से, संपूर्ण रीति से हमेशा हमारे तारण के जीवन को हम जीते रहे, और उसके साथ साथ हम जब बचाए गए हैं तब हम आत्मिक रीति से भी अपने प्रभु और हमारे न्याय करने वाले यीशु मसीह को मिलने के लिए हम तैयार रहे। Also, we as believers are assigned tasks and are created for a purpose. और हम विश्वासी होने के नाते हमें भी अलग अलग प्रकार के कार्य दिए गए हैं, हमें हेतु दिए गए हैं जो हमें हमारे जीवन में पूर्ण करने हैं। And we are to fulfill that purpose each day of our lives. और हमें उन कार्यों को हमारे जीवनों के अंदर दिन प्रतिदिन उसे हमें पूर्ण करते रहना है। And by how we are supposed to be watchful and alert. और वो हम कैसे करेंगे? हमें जागृत रह के, हमें ध्यान रह के पहरा रखने की जरूरत है अपने कार्यों की। But if we commit to the patterns of the world, we will miss out on the eternal kingdom and fall short of God's glory. परंतु यदि हम इस संसार की जो भी बातें हैं उसमें अगर हम हमारे चित्त को लगाएंगे तो उसका मतलब है कि उस अनंतकालिक प्रभु के राज्य को हम चूक जाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा में अधूरे मालूम होंगे। And we also see that our staying awake is not in vain. और हम ये भी जानते हैं कि हमारा ये जो जागते रहना है वो व्यर्थता नहीं है। Luke also encourages in Luke chapter 12 verses 37 where he says, "Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes." लूका भी उसके सुसमाचार के अंदर के 12वें अध्याय के 37वें पद में कहता है कि धन्य है वो चाकर जो जागता हुआ मिलेगा जब उसका मालिक उसे ढूंढने के लिए आएगा। My dear friends, we are called blessed when we wait for the coming of our Lord. मेरे प्यारे मित्रों, हमें धन्य कहा गया है यदि हम परमेश्वर के आने की वाट जोते हैं तो। Secondly, the uncertainty of time, for we do not know the time and hour of the day. और दूसरी जो मुख्य बात है कि समय की अनिश्चितता, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है वो समय या फिर वो घड़ी या फिर वो दिन। Matthew also says in chapter 24 verses 36, "But concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven nor the Son, but the Father only." और मत्ती भी 24वें अध्याय के 36वें पद में कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के
विषय में और कोई भी नहीं जानता है, स्वर्ग में के दूत भी नहीं, पुत्र भी नहीं, परंतु केवल और केवल पिता परमेश्वर जानते हैं। Just as believers today, we do not know the time when the Lord is coming. हम विश्वासी हैं, हमें फिर भी ये नहीं पता है कि परमेश्वर के आने का समय क्या है। The generation now or later around the time of tribulation will not know the exact time, but what we know now is that how we are to wait and prepare ourselves. और हमारी पीढ़ी या फिर आने वाली पीढ़ी जो भी महाविपत्ति के समय का भी भाग होंगे, वे भी इस समय को नहीं जान पाएंगे। परंतु हमें अभी क्या करना है? हमें अभी ये करना है कि हमें राह देखकर हमें अपने आप को तैयार करना है। And by not being blinded by sin and overwhelming self-will, but preparing ourselves to give an account of what the Lord has called us to do. और इसके लिए हमें पाप में अंधा नहीं हो जाना है, अपनी खुद की इच्छाओं में मग्न नहीं हो जाना है, परंतु उसके विपरीत हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें हमारे जीवनों का, परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है उसका हमें उनको लेखा जोखा देना है। We have to wait in expectation to share in our Master's joy. हमें एक अपेक्षा में, एक आशा में हमें उनकी राह देखनी है कि हम उनके, हमारे मालिक का जो आनंद है उसके सहभागी बनने वाले हैं। In the parable of the talents also we see, as Matthew writes in chapter 25 verse 23, Jesus reminds that we are accountable for this new life. और जो तालंतों का जो उदाहरण है, दृष्टांत है, मत्ती 25 और 23 में यीशु मसीह फिर से एक बार हमें याद दिलाते हैं कि हम हमारे इस नए जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। So not only we wait to give an account, but in expectation to share in our Master's happiness. तो इसका मतलब है हम ना ही केवल अपना लेखा जोखा देने के लिए हम राह देखें, परंतु हम एक आशा में कि हम हमारे मालिक की खुशी में सहभागी बनने वाले हैं। His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." उसके मालिक ने उत्तर दिया कि शाबाश अच्छे और विश्वासु चाकर, तू थोड़े में विश्वासु मालूम हुआ है, इसीलिए मैं तुझे ज्यादा जिम्मेदारी दूंगा। आ और अपने मालिक की खुशी में सहभागी बन। My dear friends, are we waiting in the moment that if the Lord comes today, He can call us and say, "Well done, good and faithful servant"? मेरे प्यारे मित्रों, हम इस घड़ी में क्या ऐसे समय में हम राह देख रहे हैं और इस आशा रख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर भी हमें कहेगा कि बहुत ही अच्छे, शाबाश विश्वासु। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम भी इस आशा में अपने जीवन को जी रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमारा मालिक भी हमें आके कहे, शाबाश अच्छे और विश्वासु चाकर। My dear friends, this will only happen when we have received salvation and are renewed in our mind and body, as Romans 12:2 says. मेरे प्यारे मित्रों, ये तभी हो पाएगा यदि हम हमारे जीवनों में हमने तारण को ग्रहण किया है और हमारे शरीर और हमारे मन रोमी 12 और 2 के हिसाब से नए किए गए हैं। Otherwise, our wait will be pointless and being faithful will be impossible. और ऐसा यदि ना हुआ तो हमारी राह देखने की जो बात है वो निरर्थक हो जाती है और हम जो विश्वासु रहना है हमें, वो भी हम नहीं रह पाते हैं। The uncertainty will cause a lot of chaos and anxiety. ये जो अनिश्चितता है वो शायद बहुत ही हलचल और बहुत ही डर का माहौल खड़ा कर दे। And we might likely fall prey to false truths about the coming of Christ. और ऐसा भी हो सकता है कि जो झूठी बातें हैं यीशु मसीह के आने के बारे में, उस पर हम विश्वास करने लगे। And this will only happen if we do not hold fast to our salvation and stand firm on the promises of our Lord. और ये तब ही नहीं होगा जब हम हमारे
विश्वास और हमारे उद्धार को पकड़े नहीं चलते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह में हम दृढ़ नहीं खड़े रहते। Our salvation that we received as an eternal gift from God will help us to endure the anticipated parousia, the coming of Christ. ये जो उद्धार है जो हमने हमारे परमेश्वर से एक अनंतकालिक भेंट के स्वरूप में प्राप्त किया है, वो हमें मदद करेगा कि हम आने वाले मसीह की जो अपेक्षा है, आने वाले मसीह का जो बात है, उसके लिए हम तैयार और सजाग रह पाए। Dear friends, watching and waiting is never easy. मेरे प्यारे मित्रों, राह देखकर एक प्रकार का पहरा देना ये कभी आसान बात नहीं है। Many a times we are forced to wait for things and many a times we willingly wait. काफी सारी बार हमें रात देखने के लिए हमें जोर दिया जाता है, हमें जबरदस्ती की जाती है और काफी बार हम स्वेच्छा से हम राह देखते हैं। But today, as we are reminded of staying awake and being watchful of the unknown hour, the uncertain time, let us rejoice as we have received the gift of salvation, which makes our waiting certain to endure the parousia, the advent of Christ. परंतु मेरे प्यारे मित्रों, आज जब हमें याद दिलाया गया है कि जागते रहना और सजाग रहना इस अनिश्चित घड़ी के लिए, इस अनिश्चित समय के लिए, तो आइए हम आनंदोत्सव करें कि हमें ये जो उद्धार रूपी जो ये अनंतकालिक भेंट मिली है, जो हमारे इस राह देखने की बात को, जागते रहने की बात को हमें मदद करती है, हमें सहाय करती है, हमें टिकाए रखती है और परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए हमें तैयार करती है। May the uncertainty not trouble our hearts, but make us more faithful and committed towards Christ and doing His work diligently until the day He comes. मेरी यही आशा और प्रार्थना है कि ये जो अनिश्चितता है ये हमें परेशान ना करे, हमारे हृदय को व्याकुल ना करे, परंतु हमें और ज्यादा विश्वासु बनाए और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति हमें और ज्यादा समर्पित करे और हम उसके कार्यों को जो उन्होंने हमें दिए हैं वो आने तक हम अच्छे से कर पाए। In 1 Thessalonians chapter 5 verses 24, Paul also encourages the believers that even in our waiting, He who calls us is faithful and He is there to help us. थेसलोनियों के पहले पत्री के अंदर 5वें अध्याय के 24वें पद में पौलुस जो है वो विश्वासियों को एक प्रकार से प्रोत्साहन देता है कि हमारी राह देखने के समय में भी उन्होंने, मतलब कि परमेश्वर ने जिन्हें हमें बुलाहट दी है, वो विश्वासु है और वो हमें मदद करता है। Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, He will surely do it. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। As we celebrate this Advent, let us be joyful and prepare ourselves for His second coming. May the season bring hope, love, joy and peace to all in expectation of His coming. और अब हम जब इस एडवेंट सीजन को, इस बड़े बड़े दिन के इस पूरे पर्व को हम जब मनाएं, तो आइए हम बहुत ही आनंदित रह के अपने आप को मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। और ये जो पूरे सीजन की जो आशीष है, हमारी आशा है कि आपके जीवनों के अंदर ये एक नई आशा, प्रेम, आनंद और शांति लाएगी कि हम पूर्ण रीति से उसके दूसरे आगमन की अपेक्षा में अपने जीवन को जिए। आमीन। Thank you, Lord, for your word which came to us this morning, Lord, and thank you for speaking to us and, Lord, reminding us that even in that
uncertainty as we wait, Lord, that you have given us the hope, Lord, that we wait for your coming. Thank you for the gift of salvation, Lord, that we have received, Lord, and we look forward with rejoicing to your coming, Lord. Help us to prepare ourselves in a way, Lord, that when we meet you, Lord, you're able to call us and say, "Well done, my good and faithful servant," Lord. Thank you, Lord, once again for this time. In Jesus' precious name I pray. Amen. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen.